This conference will now be recorded. अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं नप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पोदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सुखराचरं तत्पोदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागराधिकं दत्तं नागराधिकं तपः तत्त्वज्ञानोत्पन्नस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधरणादिश्य गुरुपरमदैवतं गुरुपरं करुणास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशोभदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं व्यवहारं सर्वाधिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। Jai Guru Momita Ma. You got muted, Momita. Okay, I'm sorry. Thank you, Shangumitra Ma, for this beautiful presentation. And before we start meditating, I would like to inform everyone that today's Thakur Bhog was offered by Srimati Shushmita Pandama. She is from Chennai. And there is another news that her husband is not very well. So we'll pray at the lotus feet of Shishi Thakur for his good health, for his well-being, and for his speedy recovery. Also, we'll pray for everyone who are directly or indirectly affected by pandemic. So now we'll meditate for 2 minutes. नाम की बाबू Joy Guru. सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। सर्वप्रथम मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
at the lotus feet of my love Lord Sri Sri Thakur, Paramaradha Jagat Janani Sri Sri Boruma, Param Pujyapad Sri Sri Borda, Param Pujyapad Acharya Dev Sri Sri Dada, Param Pujaniyo Babaida, Param Pujaniyo Abinda, and all the respected members of Thakur family. Now move on to our first segment, that is Holy Book reading. और मैं हिंदी में सत्यानुसरण पाठ करने के लिए श्रीमती रेणु माँ से अनुरोध करती हूँ। रेणु माँ यूएसए से है। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की मुखनिश्चित सत्यानुसरण हिंदी ग्रंथ पाठ। तुम दूसरे से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को वैसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा न रहेगी। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। थैंक यू रेणु माँ। अभी मैं इंग्लिश में सत्यानुसरण पाठ करने के लिए टुम्पा माँ से रिक्वेस्ट करती हूँ। टुम्पा माँ इज फ्रॉम यूके। Joy Guru to everyone. So the English translation from Shottanusharan, The Pursuit of Truth. Try to give others as you desire to have. To proceed with this understanding, much is enough. Everyone will like you and love you spontaneously. Being just, try to make everyone happy in an honest way. You will find that many are trying to make you happy. Be careful. Don't try to make anyone happy at the cost of yourself. Then your troubles will know no end. Joy Guru. थैंक यू टुम्पा माँ। अभी मैं नारी नीति हिंदी में पाठ करने के लिए अनुरोध करती हूँ श्रीमती संध्या माँ से। संध्या माँ इज फ्रॉम यूएसए। संध्या माँ आप है? संध्या माँ आप है? अगर संध्या माँ नहीं है तो कोई प्लीज हिंदी में नारी नीति पाठ करेंगे? Okay, I think she is not here. So now I'm requesting Srimati Anjali Ma from UK to read Women's Code. You are muted, Ma. Sorry. Yeah, now it's Okay. okay. Can you hear Yeah. me? Yeah. Joy Perfect. Guru. Joy Guru. Sorry about that. Sisi Thakur's Nari Niti, Women Code. O my daughter, let your service, way of conducting yourself, thoughts and words induce such an impulse among men in general that they regard fully kneeling before you with heads bent, become charmed, enlightened, satisfied, and gratified in calling you in a deeply reverential tone, my mother, my progenitress. Then only are you a daughter, then only are you a chaste woman. Bani number 3. Rapidity and expert. Practice austerity, rapidity with your expertness, and keep a watch over the gestures and postures which show the sign of one's necessities. Try to sharpen your intellect in such a way so that you can ascertain his necessities
observing his gestures and offers only. Thus, be active to serve one, ascertaining his necessities with dignity and expertise. Thus, you will be flooded with ovation of your services. Joy Guru. Thank you, Ma. Thank you so much, Joy Guru. I would like to request everyone to keep yourself muted who are not performing. So now move on to our next segment. I am requesting Kalpana Ma. माँ हिंदी नारी नीति मैं पढ़ लूं हिंदी हाँ जी माँ, आप पढ़िए जी। ठीक है थैंक यू परम ब्रह्म से जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ का चरण तले प्रणाम पूज्य पास श्री बरदाई जी के चरण तले प्रणाम आचार्य श्री दादा के चरण तले प्रणाम नारी क्षिप्रता और दक्षता क्षिप्रता सहित दक्षता को साध लो और नजर रखो भी मनुष्य के प्रयोजनानुसार हाव भाव पर और हाव भाव को देखकर ही जिससे प्रयोजन को अनुधावन कर सको अपने बोध को इसी प्रकार तीक्ष्ण बनाने की चेष्टा करो। इसी प्रकार ही क्षिप्रता और दक्षता सहित मनुष्य के प्रयोजन को अनुधावन कर सेवा तत्पर बनो। देखोगी सेवा का जयगान तुम्हें परिप्लुत कर देगा। वाणी संख्या 3 वाणी संख्या 3 जय गुरु माँ। थैंक यू सो मच माँ, जय गुरु। अभी मैं साधना दी रचित पाठ करने के लिए श्रीमती कल्पना माँ से अनुरोध करती हूँ। कल्पना माँ इज फ्रॉम यूके। जय गुरु सभी को। पूजनीय साधना दी रचित प्रार्थना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे वृद्धि मेरे वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपनी वैशिष्ट्य में वर्धनशीला देखना चाहती हो। शपथ करती हूँ मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो पुलक में, जीवन में, यश में और मोहन संभोग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राण स्नान से स्नात करके तुम्हारी ओर और उससे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपनी समस्त प्रेम को निशेष करके तुमको तेजदीप्त जीवन में देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरे चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारी महान अभियान को अवहत कर उठा सकूं। मेरी अस्थि बुद्धि के परम उद्धाता मेरे प्रिय परम जन्मांतर की बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। इस जीवन में सार्थक हुई है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारा चरण स्पर्श कर। जुग जुग से तपस्या करके भी मुक्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल स्वरूप उस तुमको मूर्त किया है और उप भगवान को किया है मनस भगवान। दयाल कितना भाग्य है हमारा प्रियतम। आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरण में सिर्फ यही हमारी प्रार्थना है। तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो वैसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सारण प्रसारित करके सपरिपार्श्विक हमें अपने जीवन वृद्धि की अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु, मेरे सर्वस्व तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारी हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा ये विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर ना भूलूं। तुम ही मेरे पृष्ठ हो, तुम ही मेरे अनुकूल हो।
तुम ही मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारे जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे, तुम्हारे वृद्धि मेरे वृद्धि को स्पर्श करे, मेरी नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में। हे प्रिय राजाधिराज सम्राट, तुम ही रहो, तुम ही बचो, तुम्हारे हमारे जीवन चलन में प्रति पदक्षेप में ध्वनि तो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। Joy Guru Kalpana Ma, thank you so much. Now I am inviting Mala Ma to present the Panjali song. Mala Ma is from USA. জয় গুরু। পরম প্রেমময় জগৎজননী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মায়ের পাঁচালী গীত থেকে আমি পাঠ করছি। তোরা শোন রে ভাই, তোরা শোন রে ভাই, বলে যাই বাঁচাবার আর পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলে রথ। শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহি বিবরণ, যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়, পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়। গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়, শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়। মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী, যার গৃহে জন্ম নিলেন তিলকেরও পতি। করে গৃহে আলো, করে গৃহে আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল, যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনে না যায়, ভুবন মোহন রূপে সবারে ভুলাই। শুনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার, নবরূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার, বাঁচা বাড়াই আসল নীতি, ধর্ম করো সার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো। এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্মনীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্টকর্ম করো, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি যথাবিধি পালো। পালো সস্তয়নী, পালো সস্তয়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই, ত্রিজগতে নামের সম ঔষধার নাই। এ তো বাঁচার পথ, এ তো বাঁচার পথ, ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলমে বিয়ে করো ভাই। গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধাঁচ আর্য কৃষ্টি রাখো, বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল। পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলে রথ, ধর্ম নষ্ট নাহি হবে, পাবে বাঁচার পথ। এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করহ বিহার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। Joy Guru, thank you so much, Mala Ma, for this melodious presentation. I want to thank you so much, Joy Guru. I want to thank once again Renu Ma, Tumpa Ma, Taposhini Ma, Anjali Ma, Kalpuna Ma, and Mala Ma for this beautiful presentation.
नाउ जय गुरु। अभी हम लोग हमारे फर्स्ट भजन की तरफ बढ़ेंगे और टू प्रेजेंट द फर्स्ट भजन आई एम इनवाइटिंग कौरवी To present the first bhajan, I am inviting Kaurubi Chaudhuri Ma from UK. Jai Guru. I'm audible, isn't it? Yeah, clear. Shishi song written by Shishi Dada and music by Shishi Babaida and sang by Bora Boranima. I'll try. তোমারো প্রেমের বাঁশি কানে আসি উতলা করিল আমায় তোমারো প্রেমের বাঁশি কানে আসি উতলা করিল আমায় তোমারি বিরহে দিন যায় প্রাণ যায় উতলা করিল আমায় তোমারো প্রেমের বাঁশি কানে আসি উতলা করিল আমায় সঞ্চিত চিত্তে আমার কত গ্লানি কত ব্যথা ভার সঞ্চিত চিত্তে আমার কত গ্লানি কত ব্যথা ভার অবসান করি সংকর রাখো জীবন যায় উতলা করিল আমায় তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি উতলা করিল আমায় বেলা গেল সন্ধ্যা নামে আধার ঘনালো ওই বেলা গেল সন্ধ্যা নামে আধার ঘনালো ওই মন বলে ও গো প্রিয় তুমি কই তুমি কই উতলা করিল আমায় তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি উতলা করিল আমায় তুমি তো দরদি মহারাজ নাও মোরে রাখো মোরে লাজ তুমি তো দরদি মহারাজ নাও মোরে রাখো মোরে লাজ বিরহের অবসানে আজ বিরহের অবসানে আজ ভোর চিরপূর্ণতায় উতলা করিল আমায় তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি উতলা করিল আমায় তোমারি বিরহে দিন যায় প্রাণ যায় উতলা করিল আমায় তোমার প্রেমের বাঁশি কানে আসি
উতলা করিল আমায় তোমারও প্রেমের বাসি কানে আসি উতলা করিল আমায় জয় গুরু জয় গুরু তোমারও প্রেমের বাসী written by পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা music by Pujaniya Babaida and sung by Pujaniya Boro Boranima. This song is very close to my heart and this is my personal favorite. I always try to sing that song. So thank you so much Ma for this excellent presentation and I must say you have a very sweet voice. So thank you so much. और मुझे जो अच्छा लगता है आपका एक चीज आप हमेशा स्माइलिंग फेस है आपको देख के ही मन खुश हो जाते हैं तो हम लोग जो ठाकुर को पकड़ के चलते हैं शायद हमें आपको देख के सीखना चाहिए कैसे हमेशा खुश रहना चाहिए तो थैंक यू सो मच माँ थैंक यू थैंक यू now we move on to our next bhajan which will be presented by Papiama. Papiama is from Canada and she is a great devotee of Sri Sri Thakur. Yes Papia you are audible. Yes Jai Guru. শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে पूजनियो मेरे तुम हो आराधना सतने करके तुम सूचना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक हो सकल विधि के विधायक हो आचरण करके सिखाया जैसे जीवन में चलना होते कैसे आचरण करके सिखाया जैसे जीवन में चलना होते कैसे प्रेम में पुजारी तुम हो सखा प्रेम पुजारी तुम हो सदा मोहित हुए हो प्रेमों में ऐसे मोहित हुए हो प्रेमों में ऐसे मोहित हुए हो प्रेमों में ऐसे तुम्हारी करुणा कृपा माया सबने शांति शोषेंगे धारा मैदान में तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने शांति शोषेंगे धारा मैदान में तुम्हारी करुणा कृपा आया सबने शांति शोषेंगे
जियो मेरे तुम हो आराधन सकल कर्म के तुम कुछ ना हो मालिक मेरे प्राण सखा हो मालिक मेरे प्राण सखा हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो सकल विधि के विधायक तुम हो जय गुरु जय गुरु पापिया माँ, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और पापिया माँ जब भी गाना गाते हैं दिल से गाना गाते हैं और ये इसलिए आपका गाना हमेशा दिल को छूता है। तो थैंक यू सो मच पापिया माँ फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जय गुरु। थैंक यू ममिता मैम अभी हम लोग बढ़ेंगे कोरस गाने की तरफ और टू प्रेजेंट द कोरस आई वुड लाइक टू इनवाइट mother daughters trio Shima Mahajan, Miss Tulsi and Tushti Mahajan from Oman. सभी को आनंद जय गुरु जय गुरु। आप लोगों का वॉइस क्लियर है। बंधु दीननाथ तेरे रंग में हृदय रंगाया तेरे रंग में हृदय रंगाया बंधु दीननाथ तेरे रंग में हृदय रंगाया तेरे रंग में हृदय रंगाया बिन तेरे जीवन मेरा बिन तेरे जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया तेरे रंग में हृदय रंगाया तेरे रंग में हृदय रंगाया बंधु दीननाथ तेरे रंग में हृदय रंगाया तेरे रंग में हृदय रंगाया चिरजोरी माया नयन तुम्हारा चिरजोरी माया नयन तुम्हारा आलोकित करे भुवन सारा आलोकित करे भुवन सारा चिरज्योति माया नयन तुम्हारा चिरज्योति माया नयन तुम्हारा आलोकित करे भुवन सारा आलोकित करे भुवन सारा करुणायांकित तेरे मुस्कान में करुणायांकित तेरे मुस्कान में जग में शांति स्वस्ति लाया तेरे रंग में हृदय रंगाया तेरे रंग में हृदय रंगाया बंधु दीननाथ तेरे रंग में हृदय रंगाया तेरे रंग में हृदय रंगाया
परम पिया है तुमको पाकर, परम पिया है तुमको पाकर, आया तो आनंद मुझ पर छाया, आया तो आनंद मुझ पर छाया, परम पिया है तुमको पाकर, परम पिया है तुमको पाकर, आया तो आनंद मुझ पर छाया, आया तो आनंद मुझ पर छाया, शून्य हृदय में प्रभु परनाथ है, शून्य हृदय में प्रभु परनाथ है, अमृत धारा तूने भाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, बिन तेरे जीवन मेरा, बिन तेरे जीवन मेरा, अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, दीन बंधु दीननाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। जय गुरु। Joy Guru. Thank you, Seema Ma, Tulsi Ma and Tushti Ma for this wonderful presentation. मैंने तुलसी माँ और तुष्टि माँ ये दो बहनों का गाना पहले भी सुना था और आप दोनों सिस्टर्स को देख के इतना अच्छा लगता है कि आज का यंग जनरेशन ठाकुर को पकड़ के कितने अच्छी तरह से चल रहा है। आज तीनों का गाना एक साथ सुनने का सौभाग्य हुआ, तो आप लोग ऐसे ही ठाकुर को पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा लगा आप तीनों का गाना एक साथ सुन के। So thank you so much for being with us. Joy Guru. Joy Guru, thank you. Okay. After some beautiful bhajans and chorus, now we move on to our next segment, that is our introduction speech. And to present our first introduction speech, I would like to request Rao Ma. Rao Ma is from Hyderabad, and Ma, you have 15 to 20 minutes. So the stage is yours. Welcome, Ma. जय गुरु माँ। Joy Guru. मेरा आवाज अच्छा से आ रहा है? बिल्कुल क्लियर आ रहा है माँ। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऑनलाइन में उपस्थित सभी माँ को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। आज मेरे लिए बहुत ही माने सौभाग्य के दिन है, क्योंकि हम लोग बहुत किस्मत से हमको सत्संग में कोई जुड़ा देते हैं और जुड़ पाते हैं। जो किस्मत वाले हैं वो सत्संग में जुड़ पाते हैं, और जो किस्मत वाले हैं वो सत्संग में किसी को जुड़ा देते हैं, क्योंकि धर्म दान सबसे बड़ा दान और ये सब धर्म कार्य है। इसमें जुड़ाने के लिए आज मेरे प्रिय तपस्विनी वारिक माँ मुझे इसमें कुछ प्रारंभिक सूचना के लिए मुझे बोले हैं, आदेश दिए हैं, तो मैं उन्हीं का और उनका परिवार का सर्व मंगल के लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरण में प्रार्थना करती हूँ। माँ इष्ट को लेकर ऐसे चलते रहे। और उपस्थित सभी माँ को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। सभी का सर्व मंगल के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं कुछ ठाकुर जी के बारे दो शब्द पहले बोलूंगी।
सर्वप्रथम मैं ये बोलूंगी, पुरुषोत्तम सा जब युक्त होकर हम इष्ट पथ में चलते हैं तब हमारा बहुत सारे कष्ट दूर हो जाता है। और क्योंकि ठाकुर जी रहते हैं हमारे साथ, तो कर्म का फल में बहुत सारे कट जाता है। क्योंकि जैसे जब भी हम सोते हैं, हमको कोई मतलब हम जब ठाकुर जी के बात बोलने जाते हैं या तो कुछ ठाकुर जी के बात सोते हैं, तो आपको अंदर से कोई प्रेरणा देता है। ऐसा लगता होगा आपको, जो आपको पता भी चलता होगा। पूजनीय बाबा दादा भी ये बात बोलते हैं, जब हम ठाकुर जी की बात करने जाते हैं तो ऐसा लगता है अंदर से कोई शक्ति दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही बात, मैं भी अनुभव कर रही हूँ। मैं जब ठाकुर जी के लिए कुछ भी काम करने के लिए जाती हूँ या सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कोई प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे में इतना शक्ति नहीं है। मैं तो जब दीक्षा ली तो बहुत मतलब देरी से ली, क्योंकि मेरे शादी हो गया था, बच्चे हो गए थे। फिर उसके बाद मैं 95 में दीक्षा ली हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे और पहले लेना था ठाकुर जी का दीक्षा। तो अभी बहुत मतलब कितना टाइम है मेरे पास वो तो मुझे नहीं मालूम। जितना दिन हम है ठाकुर जी को पकड़ कर ही चलते रहेंगे, तो बहुत पुण्य के फल से ठाकुर जी को मिलते हैं हमको। और हम सत्संग में जब युक्त होते हैं, इष्टों के लेकर इष्ट पथ में जब चलते हैं, तो हर समय हमको ठाकुर जी रहते हैं हमारा साथ। तो इस बात मतलब ठाकुर जी के सत्संग में ज्वाइन होना कितना कंपलसरी है मनुष्य को। और एक चीज अनुभव करी हूँ, ठाकुर जो सत्संग का 2 शब्द हमारा जीवन को पूरा बदल देता है। वो मतलब सब लोग अनुभव कर पाएंगे। सत्संग में जाते हैं जब हमारा पूरा मन प्राण प्योर हो जाता है, जो भी हमारा अंदर दुख सुख दुर्गुण जहां भी जो भी है उसको प्योर कर देता है सत्संग। क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बात सुनने के लिए मिलता है। और धीरे धीरे हमारा मन, जिसमें हम मेडिटेशन जैसे होता है, मेडिटेशन करते करते आप मतलब आपको वही दिखाई देगा, वही सोचने होगा, वही सब कुछ काम आता है। तो इस टाइप का कोई भी चीज को हम ज्यादा सोचते हैं तो उसको मेडिटेशन बोला जाता है। जो हम किसका मेडिटेशन जो करते हैं वही हमारा सब मतलब आचार में व्यवहार में सब वही आता है, चाहे खराब बात हो चाहे अच्छा बात हो। तो हम लोग को सत्संग में जुड़कर सत्संग का बात अगर सुनेंगे तो हमारा आचार व्यवहार सब बदलेगा और हमारा मन प्राण भी प्योर होगा। ये सच है। तो ठाकुर जी 2 शब्द का मेरे में छोटा सा एक घटना बताऊंगी। जे मुझे 20 मिनट दिया गया है, लेकिन मेरे माँ से सुनेंगे, रत्ना चक्रवर्ती माँ से सुनेंगे। हम कम बोलेंगे तो क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं छोटा सा एक घटना बताती हूँ। एक बार दोनों बाप बेटा थे। तो वो पिताजी क्या चाहता था, वो चोर था। तो वो पिताजी क्या बोलता है उसके बेटा को, मेरे बेटा को मेरे अधिकार है, मैं जो भी सिखाने का, अरे मैं चोर बनाऊंगा। तो रोज क्या करता है, चोरी करने जाने से बच्चा को साथ में ले जाता है, प्रैक्टिस मतलब जो चोर का बच्चा चोर बनेगा बोलकर सिखाने के लिए। बाप वही चाहता था, क्योंकि मुझे मदद हो जाएगा। तो बोलता था तू नीचे देखते रहो और मैं मतलब चोरी करते रहूंगा, जो भी जहां भी चोरी करने जाएगा तू देखते रहेगा, कोई देख रहा है क्या, कोई मतलब आ रहा है क्या, और मैं चोरी करूंगा। तो ये बेटा को लेकर जाता है। और एक बार क्या होता है, आम के चोरी करने जाता है, आम के झाड़ में चढ़ जाता है। तो उससे जो जाने से पहले इसके बेटा को एक ट्रेनिंग दिया रहता है, क्या है, कभी भी तो सत्संग का बात नहीं सुनेगा, कान में 2 हाथ को रखेगा और हमेशा चलेगा। क्योंकि कभी भी तेरा कान में कोई अच्छा बात अगर पड़ जाएगा तो तू बदल जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, हमेशा कान में ऐसे दोनों हाथ को रखता है और बेटा चलता है। क्योंकि वो पितृभक्त है, वो बच्चा भी पूरा बाप के बात को अनुसरण, क्योंकि उसके माँ अच्छे रहते हैं, तो इसलिए वो बच्चा भी अच्छा बच्चा है, तो बाप के बात को अनुसरण कर रहा है, लेकिन क्यों पितृभक्त है। तो वो जब जहां भी जाता है कान में 2 हाथ रखकर आगे चलता है। उस दिन भी ऐसे पापा के साथ आम चोरी करने जा रहे हैं बाप बेटा, तो कान में दोनों हाथ को रखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जगह में क्या होता है,
भगवान उसको पितृभक्त बोलकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और एक कैसे आशीर्वाद देंगे जब भगवान बोल रहे हैं इसको आशीर्वाद कैसे देंगे, क्योंकि हम चोर का साथ रहे, चोर का बच्चा हो चाहे कुछ भी पापी तापी जो भी है, अगर कोई अच्छा सोचता है थोड़ा भी तो उसको बहुत देते हैं भगवान, ये तो सबको मालूम है। तो भगवान वो बच्चा जो पितृभक्त है उसके लिए उसको बोल रहे हैं हम कुछ इसको आशीर्वाद देना पड़ेगा अच्छा इसके लिए, क्योंकि वो पितृभक्त है। तो उसको क्या होता है, जाते जाते एक जगह में सत्संग चलते रहता है और उसको एक कांटा घुस जाता है पैर में। तो कांटा को निकालने के लिए हाथ को निकालना पड़ेगा, भले वो पितृभक्त है लेकिन उसका जब तकलीफ आया तो उस समय तो निकालना पड़ेगा उसका हाथ को, तो हाथ को छोड़कर कांटा निकालता है बच्चा। तो बच्चा कांटा निकालता है, उसके पापा भी दौड़ कर आता है, वो पापा भी देखता है कुछ नहीं है। तो उसी समय जो सत्संग बगल में चलते रहता है उसी का सिर्फ इतना सुनता है बच्चा, कोई तो देख रहे हैं, कोई तो देख रहे हैं, इतना ही सुनाई देता है वो कान में। वो हर फिर कांटा को निकाल देता है और उसके बाप उसके कान में हाथ रख बोलता है। तो हाथ में फिर कान में हाथ रखकर फिर चलते हैं दोनों बाप बेटा। फिर आम झाड़ में उसके पापा आम झाड़ के पास पहुंच जाते हैं, आम झाड़ में उसके पापा चढ़ जाते हैं और आम चोरी करने लगते हैं। तो उसी समय ये बच्चा चिल्लाता है, कोई तो देख रहे हैं, कोई तो देख रहे हैं। ये जो सत्संग में 2 शब्द सुना था उसको रिपीट कर रहा है बच्चा, कितना कुछ बात सुना था मैं बोलकर, कोई तो देख रहे हैं, कोई तो देख रहे हैं। जब चिल्लाता है उसके बाप झाड़ से जंप कर देकर वही आम सब छोड़कर बच्चा का हाथ पकड़कर दौड़कर चले जाता। बहुत दूर जाने के बाद जब पार हो गया उसको लगता है जी यहाँ और कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं आ पाएगा। तो उसके बेटा को पूछता है क्या कौन देख रहा था, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कोई देख रहा है अभी, नहीं तो दौड़ा कर आते हमको हमारा पास दौड़ाते। तो बेटा बोलता है कोई देख रहा था कि नहीं देख रहा था मुझे नहीं मालूम, जब कांटा निकल रहा था मैं उस समय वहां पे मुझे इतना सुनाई दिया जो कोई देख रहा है बोलकर। तो वो बात क्या है मैं रिपीट कर रहा था। अरे तू तो बहुत माने क्या ऐसा किया, मुझे तो सोचा मैं तो सोचा मैं नीचे कोई देख रहा है, आम चोरी कर रहा है तो देख रहा है बोलकर मैं चले आया। फिर उसके बाद उस दिन घर चले जाता है और सोचता है अच्छा से मैं चोरी एकदम निर्भय से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ चोरी कर रहा था, लेकिन बच्चा का 2 शब्द जो कहीं सुना, कितना अच्छा बात सुना जो मेरा चोरी को डरा दिया और वो डर से मुझे अभी डर लग रहा है चोरी करने के लिए। तो ये सोचकर अच्छा सोचा, बहुत आगे सोचा और सोचकर वो मतलब चोरी काम छोड़ दिया और दीक्षा लेकर मतलब वही जो सत्संग में जाकर पूछ-पाछ कर दीक्षा लेकर वो उसके जीवन को धन्य किया। वो बच्चा का 2 शब्द मतलब बोलने का मतलब सत्संग में हम जुड़ते हैं तो 2-2 शब्द जो माँ लोग दादा लोग जो बोलते हैं ठाकुर जी के बारे और जो बहुत जानकारी मिलता है। और ऑनलाइन सत्संग तो सब लोग जान ही रहे हैं कि कितना अच्छा बात हम लोग का किताब सब धूल होकर पड़ा रहता था, अभी अच्छा से साफ सुथरा कर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं कोई बोलने के लिए दे रहे हैं और कुछ बोलना पड़ेगा तो कैसे अच्छा बोले ये सब सोचकर। तो ऑनलाइन का सत्संग भी हमारे लिए वो चोर के जैसे बराबर है। अगर हम जुड़ेंगे रोज 2 भी जो पूरा सत्संग में सुनेंगे उसका 2 शब्द भी यदि हमारा जीवन में अनुसरण कर पाए या तो हमारा जीवन को प्योर कर देगा पूरा और बहुत सारे बात सुधर जाता है। जाने अनजाने में हम सत्संग का सुनकर कोई माँ ऐसा बोले हैं तो ऐसा सच लगा हमको कि दिल को खुश हो गया, दिल खुश हो गया वो बात सुनकर, तो हमारे जीवन में बहुत मतलब सफल कर देगा। तो इसीलिए सत्संग जोड़ने से इतना जरूरी है। अभी 3.5 करोड़ का जैसे दीक्षा के लिए पूज्य पद आचार्य देव ने आशीर्वाद दिए, ये धर्मदान करने के लिए। धर्मदान सबसे श्रेष्ठ दान है, उसके बाद कन्यादान है। कन्यादान देने जैसे उसका उन्नति होता है, धर्मदान भी ऐसे उन्नति होता है। और कुछ दान करने से वो 2 दिन में खाकर भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या है धर्मदान इतना अच्छा है, तो हम सभी को जुड़ा कर मतलब हमारा जीवन को सफल करेंगे। और एक बार हमारे घर में ऐसे हमारा श्रद्धेय जी नाम याद नहीं आ रहा है, हमारा संजीव मंडल दा, सॉरी थोड़ी देर लेट हो गया। संजीव मंडल दा हमारा घर में सत्संग हो रहा था हैदराबाद में और दादा आए थे। तो उन्होंने स्पीच में बोल रहे थे कभी भी किसी को दीक्षा दिलाने के समय तो आप कभी भी ये बात नहीं बोलना कि आपको सब दीक्षा लेने से सब मिल जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी बोले धरो करो और पाओ, मतलब करने से ही मिलेगा, ये चीज बोलना है। चाहे वो दीक्षा ले या ना ले,
और वो तो ठाकुर जी देखेंगे, क्योंकि वो परमपिता का आशीर्वाद होने से ही सब कुछ होता है। हमको कोशिश करना है और बोलना है, आप ठाकुर जी को अभी मतलब ग्रहण किए हो, आप करो, धरो और पाओ, जो जो रूल्स है उसको पारो। तो एक बार ठाकुर जी को हाउजर मैन पूछे, इस बात पर मैं एक छोटा सा घटना बता रही हूँ। हाउजर मैन पूछे, प्रभु और आप तो भगवान हैं, श्री ठाकुर जी को हाउजर मैन बोल रहे हैं, जे आप तो भगवान हो, और आप ये बताइए मुझे, जे आपका भक्त को कभी ऐसा कभी हुआ है क्या, जे आप बचा नहीं पाए? मतलब जो आपका भक्त लोग है उनको भी कभी नहीं बचा पाने का दिन आया क्या? श्री ठाकुर जी बोलते हैं, हाँ ऐसा दिन हुआ है। तो ऐसा दिन आया है। तो वो दिन क्या था, जैसे मैं बहुत सारे घटना है, ऐसे बहुत सारे घटना है, एक मैं घटना बता रही हूँ जैसे छोटा सा। तो माता मनमोहिनी देवी जब श्री ठाकुर जी के साथ थे, तो उस समय एक बार श्री ठाकुर जी कलकत्ता जाना पड़ा कुछ काम के लिए। जय गुरु माँ, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपको 2-3 मिनट में अगर खत्म करेंगे तो अच्छा होगा। जी माँ जी जी। तो मैं यहाँ से, ठीक है माँ, ठीक है, 2-3 मिनट बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो माता मनमोहिनी देवी जब ठाकुर जी के साथ जाने के लिए कोशिश किए, तो ठाकुर जी मना करते थे, जे नहीं आप नहीं आओ मेरे साथ। फिर भी ठाकुर जी के साथ गए। ठाकुर जी के साथ नहीं गए, माँ ने ठीक है बोलकर चुप रह गए। ठाकुर जी जब चले गए तो माँ उनके पीछे पीछे जाकर 2-4 दिन के बाद कलकत्ता में पहुंच गए। तो ठाकुर जी माँ को देखकर बहुत रोए। फिर बोले, माँ आपको तो मैं मना किया था, क्यों आए? तो माँ ने बोले, हम आपको छोड़कर हम नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आए। तो इसीलिए माँ उसके बाद बीमार हो गए, और धीरे धीरे बहुत बीमार ठीक नहीं हुआ और वो प्राण त्याग किए थे। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरे माँ को यदि मेरे बात नहीं सुनने से मैं बचा नहीं पाया, तो मैं ऐसे ही मेरे बात नहीं सुनने से मैं किसी को बचा नहीं पाऊंगा। तो मैं आज जो हमारा श्रद्धेय माँ के बारे थोड़ा सा, रत्ना चक्रवर्ती कुमारी के माँ के बारे 2 शब्द बताऊंगा। सत्संग का प्रथम सेक्रेटरी थे हमारा दादा, उनके और जो माँ का जो पिताजी है श्रद्धेय ज्ञान गोस्वामी दादा, सत्संग का सेक्रेटरी थे। एकनिष्ठ ठाकुर जी का परम भक्त थे और सह-प्रतीक ऋतिक थे। और श्रीमती रत्ना चक्रवर्ती माँ उनका सुपुत्री है, और दिल्ली में रहते हैं माँ। और माँ का पतिदेव भी सह प्रतीक ऋतिक है, दिल्ली एम्स में डॉक्टर थे माँ के जो हस्बैंड है। और माँ ने बहुत भक्तिमती है, श्री बड़े माँ का संग लाभ किए हैं। उनके बारे बहुत सारे बात अभी सुनेंगे। यदि माँ टाइम में थोड़ा आगे हो गया तो क्षमा करेंगे। जय गुरु माँ, जय गुरु। सभी का सर्व मंगल के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना। थैंक यू माँ, बहुत अच्छा लगा आपसे इष्ट प्रसंग सुन के। और आपने जो बोला कि हमें सत्संग अटेंड करना इतना ज़रूरी क्यों है, हमारी खुद की प्यूरिफिकेशन के लिए हमें सत्संग अटेंड करना चाहिए। और हम लोग जो अभी इधर देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में, बहुत सारे लोग जिनको ठाकुर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन सत्संग अटेंड करके ही बहुत सारे लोगों का दीक्षा हो गया है। सो थैंक यू सो मच माँ फॉर बीइंग विद अस। आगे भी आपसे सुनना चाहेंगे, और दैट वाज ऑल इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। अभी जिनके लिए हम लोग जय सब गुरु वेट माँ। कर रहे हैं, जय गुरु, जिनसे सुनने के लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं, श्रीमती रत्ना चक्रवर्ती माँ को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और एज रामा टोल्ड हर, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज द डॉटर ऑफ गेंदा विकास गोस्वामी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ सत्संग। तो आज माँ से सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। माँ यू हैव 30 मिनट्स, तो स्टेज इज योर्स। आप इष्ट प्रसंग स्टार्ट कीजिए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, आपका वॉइस क्लियर है। परम प्रेममय श्री ठाकुरेर राতুल चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा रातुल चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बद्दार रातुल चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा रातुल चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय बाबाईदार चरणे आमार प्रणाम। ठाकुर बाड़ीर सकलेर चरणे आमार, ठाकुर परिवारेर सकलेर चरणे आमार प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन
मातृ सम्मेलनी में जितने भी आप लोग उपस्थित हैं, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। मैं आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे आज यहाँ बोलने की मौका मिला। मैं आप लोगों को किसी से परिचित नहीं हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत दिन से देखा हुआ है। तपस्विनी माँ ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, आग्रह दिखाया और कुछ बोलने के लिए कहे, तो मैं तपस्विनी माँ से और राव माँ से आप लोगों ने सुना कि मैं ठाकुर जी को देखी हूँ और श्री बड़ो माँ को भी देखी हूँ और श्री ठाकुर, मेरा बचपन जो है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप देवघर में हूँ। मेरा बचपन जो है देवघर में ठाकुर बाड़ी में ही हुआ मेरा चाइल्डहुड, और मैं तब छोटी थी इसलिए उतना अनुभव तो मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं जितना मेरे पास अभी मैं जब सोचती हूँ तब सारा कुछ मेरे नजर के सामने आ जाता है और मैं हतचंबित होती हूँ कि तब क्यों नहीं मेरे पास इतना अनुभव था किसी से ठाकुर जी को समझने के लिए। दो चार मेरे पास कितना समय है ये अगर बता देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। माँ आप मेरे 30 पास, मिनट्स बोलिए। हाँ आप 30 मिनट्स बोलिए। अच्छा, तो श्री ठाकुर जी जब पटना से देवघर आए थे तब आप लोग जानते हैं कि अचानक ही ये निश्चय किए थे ठाकुर जी कि पटना का जो माहौल था उस समय राजनीतिक कारण से ही हो और किसी भी कारण से थोड़ा बहुत अशांत था। ठाकुर जी की तबीयत भी उस समय खराब चल रहा था। डॉक्टरों ने एडवाइस किया था ठाकुर जी को वायु परिवर्तन के लिए। तो कहाँ जाए ये बात लेके बहुत चर्चा हुई कि कहाँ जाने से ठीक रहेगा। अंत में जाके ये निश्चय लिया गया कि देवघर तब बिहार के छोटनागपुर जिले के अंतर्गत था, अभी तो झारखंड है। तो देवघर एक जैसे पाबना का जो परिवेश था, पाबना की जो प्रकृति था वो बिल्कुल अलग था। वो मतलब कि हरी भरी शस्य श्यामला और बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक दृश्य सब मिला के वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश था वो बहुत ही सुंदर था। और देवघर तब बिहार के देवघर तब रुक्ष शुक्ष देवघर, उसमें मतलब कंकड़ पत्थरों का देवघर, चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ों, बड़े पहाड़ भी है, बहुत सारे पहाड़ों से घिरा हुआ, देव देवियों के मंदिर से बहुत मंदिर वहाँ बहुत है। स्पेशली बाबा बैद्यनाथ जी का आश्रम है, वहाँ मंदिर है। बाबा ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है बैद्यनाथ जी। तो वहाँ के लोग को पांडा संप्रदाय कहते हैं। तो इसके लिए देवघर जो है, लेकिन देवघर का जो प्राकृतिक परिवेश है, देवघर वहाँ के जल वायु इतना मतलब कि पवित्र था कि लोग उस समय कहते थे कि लोहा खा के भी लोहा हजम हो जाता था। इस समय जैसे आजकल बिस्लरी वाटर, प्यूरिफाइड वाटर ये सब की चलन है, देवघर भी कुछ नहीं था। नल से पानी आता था, ये कुएं से पानी भरकर लोग पीते थे, लेकिन अस्वस्थता नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी उस समय। ठाकुर जी आप पहुंचे पाबना से देवघर, करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर। ठाकुर जी का इतना संगठन मूलक कार्य था वहां पे ठाकुर जी का, आप लोग सभी जानते हैं कि ठाकुर जी वहाँ स्कूल, कॉलेज, विश्व विज्ञान केंद्र, मैकेनिकल वर्क्स, केमिकल वर्क्स, मातृ मंदिर, बहुत सारे जो ठाकुर जी का निर्माण कार्य वहाँ हुआ था। सभी को छोड़कर ठाकुर जी वहां से आने के लिए, देवघर आने के लिए निश्चय कर लिए थे। जैसे एक शून्यता, पूर्णता से शून्यता की ओर ठाकुर जी आए। भरा पूरा हुआ हिमायतपुर गांव जहाँ ठाकुर जी का इतना कुछ बना हुआ था, और ठाकुर जी आ गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोग जो उस समय देवघर आश्रम में सिर्फ बड़ाल बांग्लो थी,
जिसको आजकल मेमोरिया कहा जाता है, सिर्फ वो बिल्डिंग थी और कुछ भी नहीं था। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी के साथ साथ बहुत भक्त जनों भी आ गए थे। ठाकुर परिवार के लोग तो आए थे ही, और इस समय की एक बोलना चाहती हूँ कि श्री बड़मा, परमाराध्य जगत जननी श्री बड़मा की भी वहाँ इतना मतलब कि उनका संसार बड़ा हुआ था। उन्होंने बहुत ही अपने संसार को बहुत ही प्यार से उसको बनाए हुए थे। और उनका जो आनंद बाजार का प्रबंध था, और भी जितनी सारी माता की बड़मा की काम की कोई अंत नहीं थी। जब ठाकुर जी ने श्री बड़मा के आके बोले कि बड़ बहू जेते हबे, श्री बड़मा प्रश्नहीन चित्त से ठाकुर जी के अनुसरण किए थे। कुछ भी नहीं लिए थे, सिर्फ ठाकुर जी की जो जरूरत की चीजें थी, बहुत जरूरत की चीजें, कुछ खाने पीने का सामान, ये सब लेके बड़मा ठाकुर जी के पीछे रवाना हुए थे। ठाकुर जी का एक वाणी है, आप लोग जानते हैं कि प्रश्न आमार अस्ते जाओ রহুক যুক্তি সরে তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ध করে। श्री बड़मा के पास कभी भी कोई प्रश्न नहीं था ठाकुर जी के बातों को लेके। ठाकुर जी जो बोलते थे बड़मा वही करती थी, निशंक चित्त से वही करती थी। तो बड़मा को लेके, ठाकुर परिवार के सभी को लेके और बहुत सारे भक्तों को लेके ठाकुर जी देवघर आए थे। वहाँ की जो, अगर मैं डिटेल्स में बोलना चाहूँ तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। तो वहाँ पे श्री बड़मा ने पूरा रसोई घर, किचन जो है संभाल लिए थे। ठाकुर जी का तुरंत देवघर आश्रम में पैर रखने के साथ साथ बड़मा का कार्य शुरू हो गया था। श्री ठाकुर जी के लिए खीरा, दही ये सब बनाए, ठाकुर जी के भोग में लगे। उसके बाद ठाकुर जी का दोपहर का भोग तैयार करने लगे श्री बड़मा। सारे भक्त लोग जो आए थे सबके खाने के लिए इंतजाम बड़मा ने किए थे। सबको, जैसे एक भी लोग भूखा न रह जाए, सबको खिला कर श्री बड़मा फिर बड़मा खाना खाती थी। इस तरह से दिन चल रहा था। इसी बीच एक दिन ठाकुर जी का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। उस समय धीरे धीरे ठाकुर जी, फिर से ठाकुर जी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। रसोईशाला मंदिर, फिलैंथ्रोपी, स्कूल, आनंद बाजार, कारखाना, बहुत पावर हाउस, सभी का निर्माण शुरू हुआ। और इसी बीच भक्त जनों का आवागमन भी बढ़ने लगा था। उस समय बहुत सारे भक्तगण आने लगे थे। उसी समय आनंद बाजार पत्रिका के संपादक जो है चपलाकांति भट्टाचार्य, उन्होंने देवघर आश्रम परिदर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने ठाकुर दर्शन किए और ठाकुर जी से उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी, आप इतने लोगों के लिए आप आहार का व्यवस्था कर रहे हैं, उनके वासस्थान की व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, इतना परोपकार आप कर रहे हैं, तो इसको आप पत्र पत्रिकाओं में क्यों नहीं इसको छपवाते हैं? परोपकार कर लिखने से भी तो मंगल होता है, आप इतना परोपकार करते हैं। तो ठाकुर जी हंसते हुए बोले कि आप परिवार में अपने बच्चों का देखभाल करते हैं ना, उनको खाना, उनको शिक्षा सब देते हैं ना, अपने पति का देखभाल। तो उन्होंने चपलाकांति भट्टाचार्य ने बोला कि हाँ ठाकुर, ये तो सब कोई करते हैं, ये तो बोले कि आप क्या इसको पत्र पत्रिका में छपवाते हैं? तो बोला नहीं ठाकुर, ऐसे कैसे हो सकता है, हर परिवार में जो है मेल मेंबर जो होता है वो अपने परिवार का देखभाल करते हैं, और इसको तो छपवाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। तो ठाकुर जी बोले मैं भी उसी तरह, सब मेरे संतान है। जो लोग आप लोग देख रहे हैं कोई मेरा पर नहीं है, तो परोपकार शब्द तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है परोपकार। मैं जान ही नहीं पाया इतने दिन की परोपकार कोई वस्तु है। तो ऐसे थे हमारे श्री ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी के पास उस समय बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्तियों का आवागमन था, बहुत सारे साहित्यिक, नेतृवृंद, उसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर लोग,
बड़े बड़े नेता लोग ठाकुर जी का दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए आते थे। ठाकुर जी के पास एक ठाकुर जी का उत्सव के बारे में मैं थोड़ा बाद में बोल रही हूँ, क्योंकि इसी बीच एक घटना घटी थी कि ठाकुर जी तो उस समय परम प्रेममय का रूप हम लोगों को दिखाए, दिन रात एक करके ठाकुर वाणी दे रहे थे। तब ठाकुर जी पौरत्य की एज में आ गए थे। श्री ठाकुर जी, उनका उम्र हो रहा था, फिर भी ठाकुर जी इस तरह बिल्कुल ध्यान नहीं दे। दिन रात, कभी कभी रात को 12 बजे ठाकुर जी का भोग होने के बाद भी ठाकुर जी वाणी देते रहे। वहाँ के जो वाणी के जो अनुलेखक होते थे, उनको सर्वदा सतर्क रहना पड़ता था कि ठाकुर जी कब उनको बुलाए और कब वाणी देना शुरू करे। तो ठाकुर जी उसी बीच उस समय सत्संग के सेक्रेटरी होने के लिए मेरे पूज्य पिताजी जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति लोग आते थे उत्सव के समय या उत्सव के अगल बगल भी जैसे ही हो आते थे, सबको लेके श्री ठाकुर दर्शन कराने के लिए ले जाते थे। बहुत सारे नेताओं को भी, बिहार के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सभी को लेके पिताजी जाते थे। एक दंपति आए, वो समाज के गण्यमान्य व्यक्ति है। उन्होंने आए तो उनको लेके मेरे पूज्य पिताजी ठाकुर के पास गए। ठाकुर जी पार्लर में हर समय बैठे होते हैं और जो भी आते हैं ठाकुर जी सबके साथ ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कितना अपना लोग आ गए हैं ठाकुर जी के पास। मुंह में उनकी हर समय हंसी, उनकी जैसे सर्वांग हर समय हंसते थे। उनका रूप का विवरण देना बहुत ही मुश्किल है। सभी का हालचाल पूछते थे, सब खाना खाई या नहीं, रहने के लिए व्यवस्था ठीक से है या नहीं, सब पूछते थे श्री ठाकुर जी। उनके ठाकुर जी के व्यवहार से लोग मुग्ध हो जाते थे। लेकिन उस दंपति को लेके जब मेरे पिताजी पार्लर में गए, तब देखे कि ठाकुर जी अपने स्वभाव विरुद्ध रूप से ठाकुर जी दूसरी तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ठाकुर जी हमेशा पार्लर में जब बैठते हैं तो आप लोग देखे हैं कि सामने की तरफ जो खिड़कियां होती है वो खुली होती है और सब ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं और सबको आशीर्वाद प्राप्त होते थे श्री ठाकुर जी से। लेकिन उस दिन मुंह बिल्कुल ऑपोजिट साइड में मुंह करके ठाकुर जी बैठे हुए हैं। वो दंपति आए आके बैठ गए और बैठ के कुछ देर तक बैठे रहे। तो मेरे पिताजी बोले कि ऐसे तो ठाकुर जी कभी नहीं करते हैं। ठाकुर जी सबसे बात करते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं, ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि उन लोगों को मीटिंग में जाके, मीटिंग स्थल में जाके उनको प्रवचन भी देना है, इसलिए समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठाकुर जी के आशीर्वाद लेने के बाद ही मीटिंग स्थल में, पैंडल में, बड़े पैंडल में जाना होता है। तो कुछ देर तक वो दंपति बैठे रहे, मुंह नीचू करके बैठे रहे और उसके बाद मेरे पिताजी ने प्रणाम किए और ठाकुर जी से निवेदन किए कि ठाकुर जी समय हो रहा है उनके मीटिंग का, तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ। ठाकुर जी घाड़ हिलाकर देखे नहीं, ठाकुर जी बिल्कुल उनके तरफ देखा नहीं, घाड़ हिला के और वो लोग फिर पिताजी उनके साथ बाहर आ गए, पार्लर के बाहर आ गए। बाहर आते आते ठाकुर मेरे पिताजी सोचने लगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठाकुर जी ऐसे तो कभी नहीं करते हैं। मैं इनको, ये दंपति को पैंडल में, स्टेज में बिठाकर मैं ठाकुर जी के पास आऊंगा और इसका कारण मेरे को जानना है कि क्या कारण है इसका। अचानक ये दंपति जो आगे आगे जा रहे थे, मेरे पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर बाड़ी से पैंडल तो पैदल का रास्ता, 2 मिनट का रास्ता है। वो मेरे पिताजी सुन रहे हैं कि वो दंपति बोल रहे हैं कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को बोल रहे हैं, तुमने ठाकुर जी की तरफ देखा तो नहीं। सब कोई बोल दिए थे कि ठाकुर जी मेस्मराइज कर देते हैं, ठाकुर जी को ये मेस्मराइज करने का बहुत क्षमता है, मैंने तो ठाकुर जी की तरफ देखा भी नहीं। तो हस्बैंड ने बोल रहे हैं कि ना पागल हो क्या, मैं ठाकुर जी की तरफ कभी नहीं देखता, मुझे भी पता है वो मेस्मराइज करना जानते हैं।
उनकी तरफ देखना तो दूर स्थान, मैंने अपने सर को उठाया ही नहीं। मेरे पिताजी हतचंबित रह गए थे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। इसीलिए परम प्रेममय पहले से ही जान चुके थे कि इनका मनोभाव क्या है। इसलिए मेरे पिताजी बोले, इसलिए ठाकुर जी पूरा मुंह को घुमा लिए थे और इनके तरफ देखा ही नहीं, और ये लोग जानते नहीं है कि किस आशीर्वाद से ये वंचित रह गए। फिर ठाकुर उनको पैंडल में छोड़ के श्री ठाकुर जी के पास आए। मन ही मन बहुत अपराध बोध जाग रहा था कि मेरे सामने प्रश्न जाग उठा था। ठाकुर जी के पास आए, आके देखे ठाकुर जी कि जैसे बैठे हुए थे, हंसी मुख बैठे हुए थे, सबके साथ बात कर रहे थे, सबकी ओर देख रहे थे, ठीक उसी मूर्ति में बैठे हैं ठाकुर जी, उसी रूप में बैठे हैं। मेरे पिताजी को देख के एक हंसी बड़े बड़े बोले कि ज्ञान दे आए उनको स्टेज में। ठाकुर जी बोला, हाँ ठाकुर मैंने दे के आए। फिर पिताजी को, तुमको भी तो जाना है मीटिंग में। पिताजी बोले कि हाँ ठाकुर मुझे भी जाना है। तो प्रणाम करके फिर वहां से निकल पड़े थे। ऐसे थे हमारे लीलामय प्रभु। लीला का कोई अंत नहीं है, हर दिन नित्य नए लीला। ठाकुर जी को लीला के कितनी बातें मैं कह सकती हूँ। उस समय उत्सव में बहुत लोग आते थे, बहुत लोगों का समावेश होती थी, फिर भी श्री ठाकुर जी की जो आंखें हैं वो मनुष्यों की खोजते थे। दूर दृष्टि डाल के देखते थे, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, खाली मनुष्य को खोजते थे। इसलिए तो कहते थे कि एक मनुष्य के बदले में एक साम्राज्य को भी छोड़ने के लिए मैं राजी हूँ। उस समय बहुत सारे लोग आते थे, उत्सव के समय में बहुत सारे लोग आते थे। वो लोगों को रहने के लिए उतना सुव्यवस्था होती नहीं, क्योंकि उतना बिल्डिंग अब तक बना नहीं था। 3-4 बड़े बड़े पैंडल बना हुआ था, घर घर में जगह, घर घर के प्रत्येक घर में छोटा मोटा पैंडल बनाया जाता था, उसी में वो लोग रहते। ठाकुर बाड़ी जो आप लोग देख रहे थे, जो बड़े बड़े वो जो रोशन सोना मंदिर के पास जो बट का पेड़ है, वहां तब सब लोग ऐसे सोते थे, ऐसे कि उनको कोई जैसे मखमल के बिस्तर पे सो रहे हैं, ऐसे उनकी भावना थी। क्योंकि उनका मन में यही था कि श्री ठाकुर दर्शन करने के लिए आए। उनके मन में सिर्फ यही बात थी कि ठाकुर जी को दर्शन कर रहे, कैसे रह रहे हैं, कैसे खाना खाना है, कैसे हम लोगों को बाथरूम जाना है, इसके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं थे उस समय। सिर्फ ठाकुर जी और ठाकुर जी। उस समय ठाकुर जी एक बार पार्लर में बैठे हुए, बहुत रात हो चुकी थी, भोग ठाकुर जी का भोग हो गया था। ठाकुर जी बैठे हुए थे पार्लर में। जब ठाकुर जी की निद्रा के समय थी, उस समय अचानक एक भक्त उधर से गुजर रहे थे। भक्त ने देखा कि ठाकुर जी जगे हुए हैं। उन्होंने ठाकुर जी के समीप गए और जाके बोले कि ठाकुर जी आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप इतना रात हो रहा है, आप अभी भी बैठे हुए हैं बिस्तर पे, आप सो नहीं रहे हैं, कि क्या बात है। ठाकुर जी बोले, नहीं मेरा तबीयत ठीक है, मेरा मन ऐसे हो रहा है कि इतने लोग जो आए हुए हैं, इतने लोग जो मुझे मिलने के लिए इतना कष्ट उठा रहा है, बच्चों को लेके, बूढ़े पिता माता को लेके इतना कष्ट सहन करके आए हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं उनके बीच जाऊं और उनसे बातचीत करूं, उनके दुखों को मैं भाव कर लूं, उनके दुखों को मैं अंश बनूं उनके दुखों का, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसे ही थे मेरे परम प्रेम श्री ठाकुर जी का। उस समय 3 बड़े बड़े उत्सव होते थे। 3 बड़े बड़े उत्सव में नववर्ष षष्ठी तीर्थ महायज्ञ उत्सव, दूसरा है विजयादशमी का उत्सव, और तीसरा है श्री श्री बौद्ध का जन्म उत्सव। इन तीनों में ठाकुर जी आशीर्वाणी देते थे। वो आशीर्वाणी आप लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर 116 आशीर्वाणी ठाकुर जी के साहित्य में है।
वो आशीर्वाणी का एक भी आशीर्वाणी हम पढ़ते हैं तो मन गदगद हो जाता है कि ठाकुर जी कैसे ही आशीर्वाणी हम लोगों को दिए हैं, सबके लिए दिए हैं। तो दुर्गा पूजा के बाद जो आशीर्वाणी हम लोगों को मिलता था, वो दुर्गा पूजा के 7 दिन पहले से ही तत्कालीन भक्त जो है वो ठाकुर जी के पास निवेदन करते थे कि ठाकुर जी विजयादशमी का जो आशीर्वाणी है उसको आपको देना है, तो इसलिए आपको आशीर्वाणी के लिए प्रस्तुत लिखना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी बोलते थे हाँ आशीर्वाणी तो लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़े बड़े अभिधान डिक्शनरी वगैरह, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा डिक्शनरी देख के उसका धातुगत अर्थ जो है प्रत्येक शब्द का निकालते थे, जैसे शब्द का अर्थ जो है वो ठीक ढंग से मनुष्य के पास पहुंचे, उसका विकृति ना हो। इसलिए ठाकुर जी हमेशा डिक्शनरी का रिवाज था ठाकुर जी के समय। ठाकुर जी बहुत सारे डिक्शनरियों को लेके आए और उनमें से 3-4 दिन तक ठाकुर जी के मन में उथल पुथल चलता था कि किस तरह का आशीर्वाणी दिया जाए। उसके बाद अचानक ही एक दिन मंदाकिनी की धारा की तरह, पवित्र धारा की तरह अनर्गल आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाणी ठाकुर जी के मुंह से निकलते थे। वो आशीर्वाणी आप लोग सुने होंगे, विजयादशमी के आशीर्वाणी माँ दुर्गा को लेके, जिस स्पेशली माताओं के बारे में इतने सारे कि माँ दुर्गा घर की जो माँ है उनकी सेवा, उनकी तुष्टि, उनकी पुष्टि होनी चाहिए, तभी जो है मृण्मयी माँ संतुष्ट होंगे। चिन्मयी माँ का अर्थात घर में रक्त मांस की जो माँ है उनकी आराधना सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद मृण्मयी माँ मिट्टी के प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए, तभी पूजा सार्थक होती है। ठाकुर जी बहुत बातें बताए हैं ये देव देवताओं को लेकर, इनका क्या महत्व है, इनके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, सब श्री ठाकुर जी बोले हैं। उसके बाद विजयादशमी के बाद एकादशी द्वादशी के दिन से शुरू होती थी उत्सव। लाखों के लोग आते थे, बसों को रिजर्व करके, ट्रेन रिजर्व करके, बॉगी रिजर्व करके ठाकुर जी के दर्शन के लिए लोग आते थे। इसी बीच ठाकुर जी का आशीर्वाणी जो है वो पाठ किया जाता था। पिन ड्रॉप साइलेंस होती उस समय, अपने निश्वास प्रश्वास की आवाज भी लोगों के कान में आती, इस तरह का निस्तब्धता चारों। ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए हैं और उनके ही दिया हुआ आशीर्वाणी पाठ कर रहे हैं और सभी के ऊपर वो आशीर्वाणी जो है वो वर्षण हो रही है। ये एक अभूतपूर्व ठाकुर जी का लीला है, इस लीला का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ठाकुर जी की जो लीला है उस लीला को अगर मैं अगर बयान करते जाओ कभी खत्म ना होने वाला, छोटा बड़ा बहुत सारे। हम लोग जब छोटे थे हम लोगों को 2 बार श्री ठाकुर जी के पास अनायास जाने की मौका मिलता था। एक बार जब हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार होते, फाइनल परीक्षा देने के लिए स्कूल में, तब हम लोगों को आश्रम के सभी बच्चों को परमिशन थी श्री ठाकुर जी के पास जाके आशीर्वाद लेने के लिए। और दूसरा होता था जन्मदिन में जाके ठाकुर जी को बोलना कि आज मेरा जन्मदिन है, ठाकुर जी आशीर्वाद देते थे। जब हम लोग परीक्षा के लिए आशीर्वाद लेने जाते थे ठाकुर जी के पास, तब ठाकुर जी घाड़ हिला के बहुत ही खुशी खुशी मन से हम लोगों को आशीर्वाद, ভালো করে পরীক্ষা दियो, ভালো रिजल्ट हवा चाहिए। फिर जब रिजल्ट निकलते थे तब भी हम लोगों को मौका मिलता ठाकुर जी के पास जाके बोलना कि ठाकुर जी मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आई हूँ, ठाकुर जी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों, ये जन्मदिन और ये परीक्षा, ये दोनों में हम लोगों को अनायास ठाकुर जी के पास जाने का मौका मिलता। और मौका मिलती जब हम लोग ठाकुर बाड़ी में, तब जो लोग आप लोग देखे हैं बड़ो माँ का घर जो देखे हैं, इसलिए बड़ो माँ के घर के सामने ही बहुत चेरी का पौधा था, वृक्ष थी, उसमें बहुत सारी चेरिया जो है, चेरी फल जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ होता था। हम लोग नीचे से वो जो चेरी का फल, क्योंकि
ठाकुर बाड़ी में सख्त मना था कि कोई पेड़ को पौधों को खराब ना करे, इसलिए हम लोग अपने जो फ्रॉक में या साड़ी के आंचल में वो जो सभी कोई उसको चेरी फल को उठा के फिर श्री बड़ो माँ के पास लाते थे। श्री बड़ो माँ बहुत खुश होती थी। श्री बड़ो माँ ने हमेशा पूछती थी कि श्री ठाकुर जी को दिए हो? तो हम लोग बोले नहीं, ये जो भाग है ये श्री ठाकुर जी का, ये जो भाग है ये आपका। तो अभी श्री ठाकुर जी के भाग, क्योंकि चेरी फल जो है श्री बड़ो माँ के बिल्कुल पास थे, इसलिए सबसे पहले बड़ो माँ के पास आते थे। उसके बाद चेरी फल लाके फिर श्री ठाकुर जी को देने के लिए जाते थे। श्री ठाकुर जी से पारा जहाँ बैठे वहां एक बैरिकेड होती थी, वो बैरिकेड के इधर ही हम लोग चेरी फल को रखते थे और रख के प्रणाम करके ठाकुर जी देखते थे, खुश होते थे, हंसते थे। हमेशा श्री ठाकुर जी की जो हंसी है, उनका आकर्ण विस्तृत हंसी, जो हम लोग बांग्ला में एक शब्द होती है आकर्ण विस्तृत हंसी, स्मित हंसी, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जब श्री ठाकुर जी, आप लोग जानते हैं कि धरातल में जब परम पुरुष आती है तो परमा प्रकृति भी साथ ही आती है। जन्म जन्मांतर की तपस्या की इनकी जो विवाह परिणय सूत्र से जो आबद्ध होती है, ये कोई काकतालीय या साधारण घटना होती नहीं है। ये विधि की विधान होती है कि जैसे पार्वती बहुत तपस्या के फलस्वरूप शिव को अपने पति के रूप में उनको मिला था, उसी तरह परम पुरुष युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर को जुग जुग में पाने के लिए उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो तपस्या करते हैं। तपस्या के फलस्वरूप उनको इतने कठोर तपस्या करती है कि विधि के विधान अनुযাयी ये घटना घटती है कि वो परिणय सूत्र में आबद्ध होते हैं। और उनकी जो जुग्म लीला होती है, एक के बिना अधूरा। ठाकुर जी खुद कहे हैं, আমি যদি নারী দেহ নিয়ে জন্ম নিতাম তাহলে আমার যা রূপ হতো বড় বউ होता। अर्थात मैं अगर नारी देह में जन्म लेता तो मेरा जो रूप होता बड़ो बहू वही रूप। अर्थात एक ही है, एक ही सत्ता है, दो देह है। तो इसलिए बड़ो माँ के बारे में दो चार शब्द बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। बड़ो माँ जो है, जैसे हम लोग अभी मैं बोली कि बहुत तपस्या के फलस्वरूप परम पुरुष को पति रूप में मिलता है। बड़ो माँ सारा जीवन तपस्यारत थी, उनके जीवन का कोई अलग से अस्तित्व ही नहीं था। श्री ठाकुर का जीवन ही उनका जीवन था। सूर्योदय से हम लोग बोलते हैं बड़ो माँ सूर्योदय से सूर्यास्त ठाकुर जी के काम पे लिप्त रहती थी। सूर्योदय से सूर्यास्त नहीं, मैं तो बोलूंगी कि अहर्निशि बड़ो माँ बहुत कम सोती थी। बड़ो माँ ठाकुर जी के कब क्या प्रयोजन है इसलिए सदा तत्पर रहती थी, सदा सतर्क रहती थी। जिसे ठाकुर जी के बारे में जैसे बोल के खत्म नहीं होता है, श्री बड़ो माँ के जीवन को लेकर भी जो जीवन गाथाएं हैं, बड़ो माँ की जो जीवन दर्शन है, फिलोसॉफी है उनके जीवन का, उनका ये निष्ठा, अनुगत्य और कर्म तत्परता, इनको लेके जो बड़ो माँ का जो जीवन है, जीवन वृत्तांत को बोलना बहुत मुश्किल है। श्री बड़ो माँ कभी भी अपने आप कौन थे, अपने अस्तित्व के बारे में कभी भी नहीं बोले हैं, लेकिन उनका स्वरूप निर्देश किया है श्री ठाकुर जी ने बहुत तरह से, बहुत बार ठाकुर जी ने इनका, ठाकुर जी के बड़ो माँ के संबंध में जो वाणी है वो बहुत सारे वाणियां हैं। ठाकुर जी स्वरूप विश्लेषण किए हैं श्री बड़ो माँ के, कौन थी श्री बड़ो माँ। श्री बड़ो माँ ठाकुर जी जो एक बार की एक छोटी घटना है कि मैं तब बहुत छोटी थी, मुझे शिवरात्रि के समय पूरा आश्रमवासी जो है वो महिलाएं जो है वो शिवरात्रि का उपवास रखती थी और बाद में जाके बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जाके जल चढ़ाते थे। तो उस समय बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ होती थी, स्टैम्पेड होने की आशंकाएं होती थी। उस समय एक बार मैं बहुत 4-5 साल की होगी,
तो उस समय मुझे भी लगा कि मैं भी मेरे पूज्य माता जी से आग्रह किया कि मैं भी शिवरात्रि रखूंगी, शिवरात्रि का उपवास रखूंगी। मेरी माँ ने बोला कि इतनी छोटी उम्र में इतना उपवास नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं जिद में अटी रही कि नहीं, मैं शिवरात्रि का उपवास करूंगी। मेरे माँ मेरे हाथ पकड़कर बड़ो माँ के पास लेके गए। बड़ो माँ को माँ ने बोला कि बड़ो माँ, ये छोटी सी बच्ची ये बोल रही है कि उपवास रखेगी शिवरात्रि का। बड़ो माँ बोली बहुत अच्छी बात है, रखेगी उपवास। मैं तो खुशी खुशी आ गई, लेकिन विधि का विधान कुछ अलग है। मैं शिवरात्रि के अगले दिन बहुत बीमार पड़ गई, पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मेरे माता ने बोला कि ये तो पेट में इतना दर्द है, कैसे तुम उपवास रखोगी। फिर से मेरे माँ मेरे को गोदी में लेके बड़ो माँ के पास गई कि इसके पेट में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी बोल रही है कि वो करेगी। अच्छा, मेरी बात आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जी माँ, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। अच्छा, वीडियो चल रही है? जी जी जी, चल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे स्क्रीन में थोड़ा अलग चीज दिखाई दे रहा है। तो जो भी हो, उसके बाद श्री बड़ो माँ ने निर्देश दिए कि खिचड़ी खा के उपवास रखेगी। सोचिए, शिवरात्रि जहाँ निरुंग उपवास करते हैं और जल के बिना उपवास होती है, वहां से बड़ो माँ ने बोली ये खिचड़ी खा के उपवास करेगी। और नंदन पहाड़ में जाके, वहाँ एक नंदन पहाड़ है, वहाँ शिव जी का मूर्ति है, वहां जाके पूजा चढ़ाएगी, जल चढ़ाएगी। क्योंकि बाबा बैद्यनाथ के आश्रम में बहुत भीड़ होती है, स्टैम्पेड उनके गिर जाने की बहुत आशंका होती है, वहां जाके जल चढ़ाएगी। ठाकुर जी ने कहे हैं कि कोई भी संस्कार में बद्ध नहीं होना, एकमात्र परम पुरुष के संस्कार के साथ रहना। तो यही है परम पुरुष के संस्कार, जो देते हैं वही नियम हो जाती है, वही विधि हो जाती है। श्री बड़ोमा के एक छोटे घटना के साथ मैं विराम दे रही हूँ। श्री बड़ोमा ठाकुर जी जो चिंता करते थे, बड़ोमा की चिंता भी वही होती थी। जो ठाकुर जी सोचते थे, जो भावना करते थे, जो भाव में होती थी, श्री बड़ोमा का वही भाव होती थी। ये एक छोटी सी घटना है हम लोगों के सामने ही, जो जिनके साथ घटी थी वो हम लोगों की बहुत ही जान पहचान की थी। डॉक्टर राय मोहन दे, वो राय मोहन दा त्रिपुरा में रहते थे उस समय। त्रिपुरा से आश्रम आने के लिए वहां बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि तब डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं था, 2-4 ट्रेन बदल बदल कर आना पड़ता था। रास्ते में बहुत कष्ट होती थी खाने पीने के लिए। मतलब वो पहुंचते पहुंचते देवघर पहुंचते पहुंचते रात 12 बज गई थी। जब ठाकुर बाड़े आए तब सब कुछ बंद हो चुका था, सारे लाइट्स भी ऑफ हो गए थे। उन्होंने ठाकुर जी के आश्रम, ठाकुर बाड़ी के आश्रम का जो गेट है, गेट बंद हो गया था। गेट के बाहर ही ठाकुर जी के प्रणाम किए और सोचे कि देखता हूँ कि आनंद बाजार में कुछ मिलता है या नहीं। आनंद बाजार में गए, क्योंकि वो भूख और प्यास से बहुत ही कष्ट हो रहा था उनको। वो आनंद बाजार में गए तो आनंद बाजार का सब कुछ बंद हो, रात 12 बजे कुछ नहीं खुला है। उन्होंने आए तो देखा कि एक दुकान में, जो मिष्टान्न का दुकान है, रसगुल्ला वगैरह, लड्डूकिनी वगैरह सब कुछ मिठाई रखा हुआ है, और ये दुकानदार है वो जो है वो उसी में सो रहा है। तो उन्होंने उनको जय गुरु दिया और बोला, भाई मुझे कुछ खाने के लिए दो, एक मिठाई दे दो कि मैं पानी पी के रात बिता दूं। वो भाई जो है वो जय गुरु सुन के, क्योंकि जय गुरु ध्वनि जो है वो मन को इतनी पवित्रता की ओर ले जाती है, इतनी शुद्धता के साथ मनुष्य के अंतःकरण को शुद्धिकरण कर देता है। वो तुरंत उस भाई को, राय मोहनदा को उन्होंने 2 रसगुल्ला दिए। वो रसगुल्ला खा के राय मोहनदा रात बिताए। सुबह होते ही राय मोहनदा ठाकुर बाड़ी गए। ठाकुर जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी देखते ही बोले कि কিরে কখন আসলি?
रायचांदा ने बोला कि कल रात 12 बजे आया ठाकुर। तो ठाकुर जी पूछे कि कुछ खाया था? तो उन्होंने बोला, भक्त ने बोला कि नहीं ठाकुर जी, सब कुछ बंद हो चुका था। सिर्फ दुकानदार को बोलने पर उन्होंने दया परवश मेरे को 2 रसगुल्ला दिए थे, उसको खा के पानी पी के मैं सो गया था। तो ठाकुर जी ने बोले कि तो बड़ो माँ के पास क्यों नहीं आया? तो वो भक्त जो है वो बोले कि ठाकुर जी इतनी रात हो गए थे, कैसी मैं बड़ो माँ को आके मैं उनको नींद को खराब करूं, उनको मुश्किल में डालूं, ये मेरे से नहीं हुआ इतने रात को। तो ठाकुर जी ने बोला, বড় মা তো মা, মায়ের কাছে সন্তান আসবে, এর মধ্যে সময় অসময়ের কি আছে? যখন আসবি তখন বড় মার দরজা তোদের জন্য খোলা। श्री ठाकुर जी ने फिर बोला कि बड़ो माँ के पास गए हो, प्रणाम किए हो? तो भक्त ने बोला कि नहीं ठाकुर जी, अभी आपसे मिलके फिर बड़ो माँ के पास जाऊंगा। बड़ो माँ के पास आए, बड़ो माँ वही प्रश्न का रिपीट किया। बड़ो माँ ने बोला, कब आया? रात को 12 बजे माँ। कुछ खाया था? नहीं बड़ो माँ, सिर्फ 2 रसगुल्ला, सब कुछ आनंद बाजार बंद हो चुका था। मेरे पास क्यों नहीं आया? बड़ो माँ, उस समय आपको मुश्किल में फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगा। श्री बड़ो माँ ने वही बोला कि माँ के पास संतान आएगा और संतान माँ को कष्ट होगा, ये तुम लोग समझते, तुम्हारी समझ में ये बात आती क्यों है? माँ तो हमेशा संतान के लिए जागृत रहती है। तुम लोग जब भी आओ, आश्रम पे आने के बाद कोई कष्ट में रहे, ये ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग जब भी आओ, जिस समय भी आओ, मेरे द्वार जो है, मेरे दरवाजा है, तुम्हारे लिए खुला ही होता है। अभी तुम बैठो, ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद तुमको भोग मिलेगा, भोग मैं दूंगी तुमको। तो देखिए ठाकुर जी जिस बात को, ठाकुर जी जहाँ बैठे थे, बड़ो माँ उससे काफी दूर बैठे थे। बड़ो माँ का जो आप लोग देखते हैं आजकल भोग का घर, उसी में बड़ो माँ जी रहते थे। एक छोटा सा कमरा, छोटा से छोटा, हम लोग इनकी चिंता के भी बाहर, इतने छोटे से कमरे में बड़ो माँ रहती थी। और इतनी सुंदर से सजा हुआ कमरा कि आप एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाने के लिए मन करेगा कि किस तरह रखा है बड़ो माँ ने। उनका जो चौकी था, उन चौकी को ईंटों के सहारे उसको और भी ऊंचा में ले जाते थे, और उसके नीचे जैसे साम्राज्य भरा हुआ है। लेकिन इतने कुछ सामानों में सिर्फ बड़ो माँ का ध्यान प्रत्येक वस्तु के ऊपर होती थी कि कहाँ कौन वस्तु रखा हुआ है। श्री ठाकुर जी जब भी बोलते थे, बड़ो माँ या तो खुद निकाल देती या वहाँ जो सेवायत होते हैं उनको बोलती थी कि অমুক জায়গায় অমুক জিনিসটা আছে নিয়ে আসো। अर्थात श्री बड़ो माँ सब जानती थी कि कहाँ, इतने जैसे बोला ना कि एक साम्राज्य छिपी होती है उसमें ठाकुर जी की समान। कब ठाकुर जी ने कौन सा फल दिया था, सूखा फल जिसको खोइतर कहते हैं रखने के लिए, कब क्या कोई कुछ भी हो, बड़ो माँ के पास सब, बड़ो माँ ने चॉकलेट हो या कुछ भी हो, सामान हो, सब बड़ो माँ इतनी जत्न पूर्वक रखती थी। उस समय जो एक बात और बोलना चाहती हूँ कि उस समय उत्सव में जो लोग आते थे, घर घर के ठाकुर जी के लिए तरी तरकारी सब्जी ये सब लाते थे अपने खेत से, अपने दुकान से, जहाँ जहाँ जो कुछ अच्छा मिलता था सब ठाकुर जी के लिए लेके आते थे। और ठाकुर जी बहुत खुश होते थे। एक टोकरी में एक आदमी, एक भक्त जो है वो 2 छोटे छोटे लाव लेके आए हैं। उनको देख के ठाकुर जी बोल रहे हैं, আমার জন্য কি এনেছিস? तो भक्त ने बोला, ठाकुर जी ये मेरे खेत के लाव है, ये लेके आया हूँ। ठाकुर जी बोले, इतना खुश हुए कि ठाकुर जी को जैसे लाखों रुपया मिल गया है। इतना खुश होते थे ठाकुर जी, बोलते थे जाओ जाओ तुरंत बड़ो बहू के पास लेके आओ। पहाड़ जैसी सब्जी वहां जमा हो जाती थी, लेकिन एक भी सब्जी खराब नहीं होती थी। श्री बड़ो माँ खुद उनकी देखभाल
ऐसी करती थी जहां रखने से कौन सा सब्जी 2 दिन बाद में भी खाया जा सकता है, कौन सा सब्जी का इस्तेमाल अभी होना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा, सभी बड़ों माँ के नखदर्पण में था। ये बातें हम लोगों के लिए शिक्षणीय है। बड़ों माँ का जीवन जो है पूरी मातृ जाति के लिए है। तो अभी मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ, बहुत समय शायद हो गया है। आप लोग मुझे बुलाया, आप लोगों ने आग्रह किया ठाकुर बाड़ी के बारे में जानने के लिए। बहुत सारी घटनाएं अनकही रह गई, बहुत सारी, इतने दिनों की बात तो इतनी छोटी समय में नहीं होता, फिर भी मैंने कोशिश किया कि ठाकुर जी के थोड़े बहुत बातों को लेके आप लोगों से शेयर करें। आप लोगों का इष्टमय जीवन, मंगलमय जीवन के लिए मैं परम पिता के रातुल चरणों में प्रार्थना रखती हूँ। सब कोई खुशी रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरु बंदे पुरुषों। जय गुरु माँ। I have no words to express my feelings now. आप जब बात कर रहे थे हमें लगा कि हम देवघर पहुंच गए, और बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मैं उस टाइम क्यों नहीं थी, मैं ये सब लीला क्यों नहीं देख पाई। और ये ख्याल आ रहा था कि परम दयाल मेरे, तुम दया करने के लिए आए हो और साथ में लाए हो परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ को। इतना दया ठाकुर का हमारे सबके जीवन में। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट है और वो लोग कितने अनफॉर्चुनेट है जिनको समझ ही नहीं आ रहा है। तो माँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बार बार आइए, बार बार आप सुनाते रहिए, बार बार हम लोगों को सुनना है, जानना है, सीखना है और इंस्पायर होना है। थैंक यू सो मच माँ। जय गुरु। Now we are almost at the end of our मातृ सम्मिलनी। अभी मैं समाप्ति संगीत के लिए डेनमार्क से सुजा माँ से अनुरोध करती हूँ। सुजा माँ। जय गुरु। जय गुरु। मैं एक नेपाली सॉन्ग करूंगी। ठीक है। 5 मिनट के लिए प्रतिभा माँ को दीजिए। ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, युगा युग मायरा, युग तारी भैरा, युगा युग मायरा, युग तारी भैरा, करछौ प्रभु लीला तिमी अनुकूल चंद्र भैरा, करछौ प्रभु लीला तिमी अनुकूल चंद्र भैरा, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, पिता शिव चंद्र प्रभु माता मन मोहिनी, पिता शिव चंद्र प्रभु माता मन मोहिनी, पवन जिला जन्म भूमि लीला गर्छौ देवघर धामैमा, पवन जिला जन्म भूमि लीला गर्छौ देवघर धामैमा, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, बचन बने जीवन नीति अजन अजन इष्ट वृत्ति, बचन बने जीवन नीति अजन अजन इष्ट वृत्ति, इष्ट सहागार राति सतिन को दीन माँ, पाठ देव है देवघर धामैमा, इष्ट सहागार राति सतिन को दीन माँ, पाठ देव है देवघर धामैमा, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, ठाकुर राम तिमी नहीं, घना श्याम तिमी नहीं, युगा युग मायरा, युग तारी भैरा, युगा युग मायरा, युग तारी भैरा, गर्छौ प्रभु लीला तिमी अनुकूल चंद्र भैरा,
गरेछ प्रभुले तिमी अनुकूल चन्द्र भएर छोटो छ यो जिन्दगानी लामो हाम्रो सम्झना छोटो छ यो जिन्दगानी लामो हाम्रो सम्झना सम्झनाको माझमा ठाकुरजीलाई राखेर भक्ति गरौँ हृदय खोलेर सम्झनाको माझमा ठाकुरजीलाई राखेर भक्ति गरौँ हृदय खोलेर ठाकुर राम तिमी नै घन श्याम तिमी नै ठाकुर राम तिमी नै घन श्याम तिमी नै युगमा आएर युगतरी भएर युगमा आएर युगतरी भएर गरेछ प्रभुले तिमी अनुकूल चन्द्र भएर गरेछ प्रभुले तिमी अनुकूल चन्द्र भएर ठाकुर राम तिमी नै घन श्याम तिमी नै ठाकुर राम तिमी नै घन श्याम तिमी नै। जय गुरु। छोटा था ये। Jai Guru Ma, very melodious presentation. Thank you so much for being with us. Although I don't understand Nepali, but I was thoroughly enjoying your song. Thank you so much. अभी मैं हमारे ग्रुप के सबसे जो वयोज्येष्ठ माँ हैं श्रीमती प्रतिभा मिश्रा माँ, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ माँ, यू प्लीज कम एंड से few words in 5 minutes. प्रतिभा माँ। जय गुरु ममिता माँ। जय गुरु, जय गुरु। Guru. Time is over. Still, I will take 2 minutes to 3 minutes because time is very important in our lives. When we love Thakur, we have to respect the time. Anyway, Param Dayal Param Premaya Sri Thakur, Paramaradhya Jagat Janani Sri Parama, Param Pujya Fast Sri Bardada Pitrudev, Pradhan Acharya Dev Pujya Fast Sri Dada, सबकी चरणों में I offer my what to say total existence of all of us because they will make our existence into a new life, new horizon, new thinking, new world. I believe in this. That's why hardly I use that I surrender. Automatically the life is in the surrender. Anyway, I pay my tribute, my respectful, humble pranam to Pujapad Babaida and all Thakur Parivar's family members. Now I'll finish in 2 minutes. I really owe my gratitude to Tapaswini, Srimati Tapaswini Ma. She has been working day in, day out to put us together. No one of us can really believe that how much she's struggling and she's doing with. Sometimes I call her, I scold her. She only needs scolding from me. She doesn't listen to anyone. Yesterday I called her. She said, I said, how are you, Tapu? No, little bit, Appa, Didi. I have little bit head reeling. I said, okay, very fine. It is good for you. Anyway, after Ratnama's, Shraddheya Ratnama's presentation, there is no word to say, but the only thing I can say, I'm 75. I have gone through so many ups and downs. It's not the judgment time. I cannot share, but lots of enriching experiences with me.
And we have in Krishna Lila, one is Bhagavad portion, another is Bhagavad Gita. Whatever Ratnama told, it is infinite Leelas. We cannot finish in 1 minute, 30 minutes, 40 minutes, 6 hours, 2 days, 30 days. It is infinite. But now the time has come what to practice. An ounce of practice, much better, thousands times better than tons of reading. Thakur had a very, very hopeful expectation of her mothers. I believe in that. Today we are late. Already our family members, my husband is 85. I normally give dinner at 9. I feel that I have failing in my responsibility means I give pain to my beloved loved Lord, because Sami Pratishta, Sami Nishtha, one thing, another thing. Thakur says, love each micro and macro, because each one has been created by Ishwar. That is the Vishwa Parivar, that is the universal family. I conclude my rendition, my talking. Thank you, Momitama. Your Shanchalana is superb. And all the mothers, participants, all the present here, I all thank you so much. I feel gratitude towards all of you to have given me an opportunity. Thank you, Momitama. Thank you, Ratnama. Thank you, Rauma. Thank you, all the participants. Thank you very, very much. I really pray on Lotus Feet all for our awful auspicious life of chant. Thank you. Thank you so much. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. जय गुरु प्रतिमा माँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंस्पायरिंग स्पीच। हम लोग और भी सुनना चाहते थे लेकिन टाइम शॉर्ट है, हम लोग फिर से आपसे सुनेंगे। और माँ, you said you are 75 but you don't look like 75. I thought you are in your mid 50s. So मुझे जानना है कि आप कैसे इतना यंग दिखते हो। Maybe one day I will call you. Next time I will share. And one thing I would like to share now, I'm 75. I have not taken a medicine in my life. That is it is not mine, but it is how to be connected with the grace. That's my wife has told me. Thank you so much. थैंक यू माँ, हम लोग श्योर आपसे नेक्स्ट डे जरूर इनके बारे में जरूर सुनेंगे। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জয় গুরু মা। अभी हम लोग ध्वनि देके आज का मातृ सम्मेलन खत्म करेंगे। जय जय वंदे वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पादु श्री श्री बड्डा की जय। परम पूज्य पादु श्री श्री बड्डा की जय। परम पूज्य पादु श्री श्री बड्डा की जय। परम पूज्य पादु आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादु आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पादु आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितृम, वंदे आर्यपितॄन्, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्टि दैवतं, वंदे अहं कृष्टि दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं,
वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु ममिता माँ, बहुत अच्छा लगा आप एंकरिंग किया। जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु सब मां को जय गुरु। सभी को जय गुरु। ममिता नाम जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु सब मां को जय गुरु। जय गुरु ममिता मां को जय गुरु। जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु रत्नमा जय गुरु। जय गुरु तपस्वी माँ जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। रत्नमा जय गुरु।